So yesterday was day 0, therefore today is day 1 of 30 days of code which is present on HackerRank. So let us quickly go to HackerRank and पहले problem पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर के जितने underlying concepts हैं that will take care of. Okay, just a second. We are here. Day 0 कल हमने solve कर लिया था. Day 1 will be solving today. ठीक है, let me just increase the screen size for you. So let us look at the objective. Today we are discussing data types. ठीक है, तो task ये है कि we have to complete the code in editor below. Okay, the variables I, D and S are already declared and initialized for you. So there are 3 variables. There is a variable I, there is a variable D, there is a variable S. They are declared for us पहले से. Now what is I? ठीक है, what is I? I is an integer. यहाँ पे लिखा है input format में लिखा हुआ है. The first line contains an integer that you must sum with I. ठीक है, I is an integer, D is a double, S is a string. We have to accept, what do we have to do? We have to declare 3 another variables, one of type int, one of type double, one of type string. और हमें ये करना है ये कि पहले से जो इनिशियलाइज्ड आई, डी और एस हैं उसमें हमने जो इनिशियलाइज किए हैं 3 अलग वेरिएबल्स इंट, डबल और स्ट्रिंग, उनको हमें ऐड करना है. ठीक है, सो यूजिंग द प्लस ऑपरेटर व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रिंट द सम ऑफ आई plus the integer variable that has been accepted. Then print the sum of D which was initialized by HackerRank with a double variable, and यहाँ पे देखो क्या लिखा है, to a scale of 1 decimal place. So we have to see, make sure कि जो decimal place है वो 1 decimal place तक है. Then what do we have to do? We have to concatenate the string S. S was initialized by HackerRank. उसके अंदर अपने को क्या करना है? We have to concatenate the string S with a string that we were reading as an input. ठीक है, एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि if you are using a language that does not support plus for string concatenation, for example C, you can just print one variable immediately following the other on the same line. ठीक है, तो since we will be focusing majorly on C, the first thing that we have to concern ourselves is कि C में plus जो है, plus sign cannot be used for concatenating string. अच्छा, string concatenation मतलब क्या है? It simply means writing 2 strings one after the other. So just to give you an example, if I have a string called as hello and if I have another string called as world, और अगर इनको मैं concatenate कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि I am writing them together. That means hello world. ठीक है, this is the basic meaning of string concatenation. अब जावा और पाइथन के अंदर यू कैन यूज प्लस. यू कैन लिटरली राइट हेलो प्लस वर्ल्ड एंड उसका आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड टुगेदर रिटन. बट इन सी यू कैन नॉट डू दैट. सो विल डिस्कस हाउ टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स इन सी. दैट आल्सो विल डू. तो इनपुट क्या हो रहा है? एक इंटीजर इनपुट मिलेगा हमें जिसको हमें ऐड करना है आई के साथ जो पहले से इनिशियलाइज है. एक और सेकेंड लाइन पे एक डबल वैल्यू मिलेगी हमें जिसको हमें सम करना है विथ ऑलरेडी प्रेजेंट डी. देन थर्ड लाइन विल have an input string that we have to concatenate with already present S. Output क्या करना है? Firstly, we have to print the sum of both integers on the first line, that is I with the value that we were inputting. Then sum of both doubles, and here is the thing, we have to scale it to 1 decimal place. तो उसका precision 1 decimal place तक होना चाहिए on the second line, and then the 2 concatenated strings on the third line. ठीक है, so just check the sample input. पहले लाइन पे एक उन्होंने 12 इनपुट किया है इंटीजर. देन द डबल वैल्यू दैट दे हैव एंटर्ड इज 4.0 एंड द स्ट्रिंग दैट दे हैव एंटर्ड इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न प्रैक्टिस कोडिंग. तो सैंपल आउटपुट क्या आ रहा है? 16, दैट इज द सम ऑफ इंटीजर्स. देन 8.0 दैट इज द सम ऑफ डबल्स, एंड देन HackerRank is the best place to learn practicing coding. Now this can be intimidating कि ये कहाँ से आया, exactly क्या हो रहा है. So let me just write it down. फुल स्क्रीन लेआउट पे जाते हैं. लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. इफ आई एक्सपैंड दिस पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आई की वैल्यू है 4, डबल डी इज इक्वल टू 4.0 एंड कैरेक्टर एस इज ऑलरेडी डिफाइंड एज HackerRank. तो ये पहले से इनिशियलाइज कर दिया है. ठीक है, द इनपुट दैट वी आर टेकिंग वाज 12, 4.0 एंड इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न प्रैक्टिसिंग कोडिंग. सो हो क्या रहा है? दिस 12 is getting added with already initialized 4 to give the answer as 16. The 4.0 is getting added with this
4.0 which we had initialized, and therefore the answer we are getting is 8.0. And finally हमने initialize किया था string hacker rank and input में string मिला is the best place to learn and practice coding. Therefore the final output that we are getting is hacker rank is the best place to learn and practice coding. Are you getting this? Question समझ में आया क्या सबको? What do we have to do? Please answer in the chat. Yes, no. Did you understand the question? एक इंटीजर, एक डबल, एक स्ट्रिंग पहले से इनिशियलाइज्ड है, दूसरा इंटीजर, दूसरा डबल, दूसरा स्ट्रिंग हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है. दोनों इंटीजर्स को ऐड करके फर्स्ट लाइन पे आउटपुट, दोनों डबल्स को ऐड करके सेकेंड लाइन पे आउटपुट, एंड दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके थर्ड लाइन पे आउटपुट. दैट इज आवर टास्क फॉर टुडे. सो बिफोर बिगिनिंग विथ राइटिंग द कोड, लेट अस फर्स्ट हैव अ लुक अराउंड, क्योंकि देखो आज का टॉपिक ही है डेटा टाइप्स. सो इट मेक्स टोटल सेंस टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विथ व्हाट इज डेटा. ठीक है, एंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है. सो लेट मी क्विकली क्लियर दिस स्क्रीन फॉर यू. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, so here's the thing. Whenever you want to perform any operation on some data, मतलब if you are performing any operation on data, that means we are manipulating that data. या operation का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप data को manipulate कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप data values को compare कर रहे हो. तो आप अगर data के ऊपर कोई भी operation perform कर रहे हो, तो उसके पहले it is very necessary that that data has a physical presence in the system. मतलब क्या है? Just take it like this. A doctor, when he is studying how to do bypass surgery, उसको सिर्फ abstract में पता है कि bypass surgery कैसे करनी है. But if he actually wants to operate, if he actually wants to do a bypass surgery, he would require a physical person to operate on. The same thing happens with data. अगर आप बोल रहे हो I की वैल्यू 5, तो अगर मुझे 5 स्टोर करना है आई में, दैट मीन्स के आई की एक फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए मेमोरी में जिसमें मैं वो वैल्यू 5 स्टोर करूंगा. इज दिस गेटिंग क्लियर टू यू? सो इसे टेक अवे क्या है? द टेक अवे विद दिस इज, इफ वी आर वर्किंग विद डेटा, वी हैव टू स्टोर इट समवेयर. सो स्टोरिंग तो ठीक है, वी ऑल्सो नीड वेज ऑफ रिट्रीविंग दैट डेटा. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा जो है वो बहुत सारे टाइप्स का है. आप इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हो, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, या आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले सकते हो. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर दोस विच हैव अ डेसिमल पॉइंट 3.14, 1.414 एंड सो ऑन. आप कैरेक्टर डेटा टाइप्स ले सकते हो. ठीक है, जैसे मेरा नाम हो गया अभिजीत. ठीक है, दिस इज एन एरे मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स ABHIJEET. ठीक है, so all these data, there are different types of data, and depending upon which data you are working in, you have to choose the data type accordingly. ठीक है, क्यों इसकी जरूरत है? The first reason is that memory which you have in your control is not infinite. The memory is limited. Therefore, we will have to realize, या we will have to assign a particular size to a particular type of data. ये क्यों जरूरी है? आई कैन गिव यू जस्ट वन एग्जाम्पल जिसे आपको समझ में आ जाएगा. लेट अस से यू वांट टू स्टोर 1 kg ऑफ आटा एंड आई गिव यू 100 kg स्टोरेज वाला कंटेनर. सो व्हाट विल हैपन टू द रिमेनिंग 99 kg का स्पेस इनसाइड ऑफ द कंटेनर? कैन यू टेल मी इन द चैट? इफ यू हैव टू स्टोर 1 kg ऑफ आटा, ठीक है, एंड हाँ, इट विल बी वेस्टेड. सो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके डेटा को कम जगह में वो स्टोर हो जाता, बट आपने अननेसेसरीली उसको बहुत ज्यादा जगह दे दी. सो व्हाट विल हैपन? द 99 kg स्टोरेज विच यू कुड हैव यूज्ड फॉर स्टोरिंग सम अदर स्टफ इज नॉट इन योर कंट्रोल नाउ. या उसको एक तरह से दूसरी तरीके से देख सकते हैं. लेट अस से यू वांट टू स्टोर 100 kg ऑफ आटा, बट you have only 1 kg का container. So you try to store that 100 kg of atta into the 1 kg container. What will happen? The atta will overflow. The same cheese applies to data types also. Every data type has predefined, like it is predefined that this particular data type will have this size inside of the memory. And depending upon what size it occupies inside of the memory, it can store only a certain range of values. इससे होता ये है कि आप ये चूज कर सकते हो कि आपको किस समय
किस ऑपरेशन के लिए किस टाइप का डेटा चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट यू वांट, यू कैन डिक्लेयर दैट डेटा, ठीक है, यू कैन डिक्लेयर दैट वेरिएबल ऑफ दैट डेटा टाइप। तो उससे ये होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे आई वांट टू स्टोर दिस साइज ऑफ डेटा, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप विल बी नीडेड टू स्टोर दिस टाइप ऑफ डेटा। तो उससे होगा कि आप स्पेस वेस्ट नहीं करोगे। And why don't we have to waste space? Because obviously the memory that we have is finite. It is not infinite. इसका one practical example I have for you. ठीक है, ठीक है. There is something called as an Ariane 5. It was so on June 4th, 1996. Let me increase the size for you. The very first Ariane 5 rocket ignited its engine and began speeding away from the coast of French Guiana. 37 seconds later, the rocket flipped 90 degrees in the wrong direction. उसको ऊपर जाना था, वो 90 degrees in the wrong direction it flipped. And what happened in the end? ठीक है, less than 2 seconds later, the aerodynamic forces ripped the boosters apart from the main stage at a height of 4 kilometers. तो हुआ क्या? The self destruction mechanism trigger हो गया, and वो जो spacecraft है, it self combusted itself. ठीक है, so ये हुआ क्या? ठीक है, what happened exactly? तो वो फिर वो जो अगर कुछ डिजास्टर हो जाता है, सो दे फॉर्म अ कमिटी, एंड वो कमिटी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या चल रहा था. दे फाउंड आउट, एंड माइंड इट, ठीक है, उनको $370 मिलियन का लॉस हुआ था इन जस्ट 37 सेकेंड्स. ठीक है, 37 सेकेंड्स के अंदर 37 सेकेंड्स वो फ्लाई किया, 2 सेकेंड बाद इट गॉट ब्लास्टेड. सो 40 सेकेंड्स के इनसाइड 40 सेकेंड्स they lost $370 million. That is a very big thing. When they tried to see what had happened, problem क्या था कि the problem began to occur when the software attempted to stuff the 64-bit variable into a 16-bit integer. So what happened is, the people who had defined the program of the rocket, they used the wrong data type, and therefore when the rocket wanted to store some value, it could not store it because the data type was not defined perfectly. हुआ क्या? Data overflow हो गया. It could not store extra आगे का values, and it could not store आगे का values. It could not process आगे का values, and therefore its system went haywire. Therefore, it is very important to understand and to know in advance which type of data you are operating on, and therefore assign that data type to that variable. ठीक है, I hope this much part is clear. Let me also go through the types of data that we can see in general or in C specifically. तो C के अंदर क्या होता है? There are something called as primitive data types. अब primitive मतलब क्या? Atomic, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं है, and बाकी सारी चीजें इसी से बनी होंगी. So if you talk about primitive data type, you can say integer, you can say float, या फिर double हो गया, ठीक है, या फिर long हो गया, या फिर कैरेक्टर हो गया, CHAR. ऑल दीज आर इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ठीक है, दे कैन स्टोर ओनली वन एलिमेंट इनसाइड ऑफ देम, इसीलिए कहते हैं दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो आफ्टर दिस सेशन, व्हेन यू exit the session, just google what are the ranges of integer, float, double, long and char to understand more about these data types. If you want, we can have a session again on these data types, simply to study the data types and their ranges and all those things. But let us focus on our question today. So ठीक है, these are primitive data types. There are something called as aggregate data types. ठीक है, यहाँ पे primitive data types जो थे, they could store only one element. Aggregate data types जो हैं, वो एक से ज्यादा element store कर सकते हैं. ठीक है, to just to give you an example, aggregate data type क्या होता है? For example, array is an example of aggregate data type because it is a collection of some elements which are having same data type. या if I tell you structure, ठीक है, structure is also a type of aggregate data type, क्योंकि structure क्या होता है? It is also collection of elements of, they can be of different data types. ठीक है. Also, just to tell you about some more data types, a pointer is also a data type. ठीक है, pointer is also a data type, लेकिन वो store क्या करता है? It points to a location inside of the memory, therefore it stores address of a location. Then there is union, there are enumeration types, ठीक है, there is a void data type. तो जितने भी सारे data types हैं,
they have the capability of storing different types of data, इसीलिए कहते हैं data type. यहां तक चीजें क्लियर है क्या? कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट? यस, नो, थिंग्स क्लियर टिल हियर? बहुत बेसिक जा रहा है, ठीक है. अब लेट अस आल्सो चेक वन मोर थिंग के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है. इट इज वेरी सिंपल. यू राइट द डेटा टाइप फर्स्ट, ठीक है. यू राइट द डेटा टाइप फर्स्ट एंड देन यू गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन यू पुट अ सेमीकोलन, ठीक है. देयर इज द डेटा टाइप, then there is a name of the variable and then semicolon. For example, you can say int a. This is, you have declared a variable जिसका नाम है a and जिसका data type है int. Data type int मतलब क्या? Inside of the memory, this is inside of the memory, this is a variable a and it is of the type integer. तो जो integer है, they can either take 2 byte of memory in some systems or they take 4 byte of memory in some system. So in my system, an integer takes 4 bytes of memory. That means ये जो a है, this would be taking 4 bytes of memory inside, 4 byte of space inside of my memory. ठीक है. If you want to initialize the variable, मतलब उसको कोई value pass करना है, you do it using the assignment operator. This equal to sign is called as an assignment operator. Assignment का काम क्या होता है? Assign करना. So to the right it requires a value and to the left it requires a variable. तो assignment operator क्या करता है? It takes this value and assigns it to the variable. तो अगर variable declared नहीं होगा तो आप उसको कोई चीज assign नहीं कर सकते, ठीक है. तो to sum things up, this is what I have written. Int a is equal to 5. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? I have declared a variable integer type a and I am storing this value 5 inside of this variable. अगर मुझे float value declare करना होता तो I would have used the keyword float. अगर मुझे double value, if I had to declare a double type of a variable, I would have written double. अगर मुझे strings चाहिए तो strings are what? Strings are basically array of characters. तो हम ऐसे लिखते हैं char and then the name and then in square brackets you give the size कि कितने कैरेक्टर्स आपको स्टोर करना है उस कैरेक्टर एरे में, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेटा टाइप्स. यहां तक एनी इश्यूज विद एनीवन? यू कैन आंसर इन द चैट. एनी डाउट्स स्टिल हियर? Memory is assigned at definition or declaration. Memory is assigned at definition. Whenever you are writing int a, it simply means that the memory के अंदर a has been assigned a value. मतलब a एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर ना कुछ भी वैल्यू हो सकता है. यू डोंट नो. Therefore, whenever you assign something, it takes garbage value. To prove this, ठीक है, I'll just go to my compiler stdio.h. This is our first line. इसका मतलब कल हमने समझा था. We are including the standard input output header file. Then there is int main. It simply tells the program execution begins here. End में return 0 आता है. Return 0 simply returns an integer to the system, therefore telling the system that the program has now terminated. So if I just say int a, ठीक है, now see what I'm doing. I'm printing the value of a. So I'll say %d and I'm printing the value of a. Let us see what happens if I run this. कायदे से तो मैंने कुछ उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो नथिंग आना, कुछ नहीं आना चाहिए. देयरफॉर द वैल्यू दैट गॉट प्रिंटेड वाज 0. 0 के अलावा कुछ और भी आ सकता था. बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड दिस इंटीजर, यू हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू इनसाइड ऑफ इट. बट अगर मैं इसको a इज इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, इट सिंपली मीन्स दैट द वेरिएबल नाउ होल्ड्स द वैल्यू 5 एंड देयरफॉर नाउ 5 वाज गेटिंग प्रिंटेड. इज दैट ओके? वन अनदर वे टू प्रूव दैट a इज डिक्लेयर्ड इज इफ आई जस्ट से साइज ऑफ. साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बताता है कि जो आप इसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हो उसने मेमोरी में कितने बाइट्स की साइज ली हुई है. सो अगर a को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और अगर वो मेमोरी में साइज नहीं ले रहा होगा तो साइज ऑफ जो है, अगर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ a, तो इट शुड रिटर्न 0 क्योंकि वो 0 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होगा. ठीक है, तो अगर मैंने लिखा साइज ऑफ a एंड वो रिटर्न कर रहा है 4, दैट मीन्स फिजिकली दिस वेरिएबल a हैज ऑक्यूपाइड 4 बाइट्स इनसाइड ऑफ द मेमोरी.
आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर? आंसर इन द चैट, यस नो? यस, व्हेन वी मेंशनड इंट ए, मेमोरी असाइंड मतलब क्या होता है, मेमोरी के अंदर, ठीक है, ए जो वेरिएबल है, it has occupied a space inside of the memory. That is what it is happening. ठीक है, now let us go back to our अच्छा उसके पहले यहाँ पे हैकर रैंक में यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो जो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ. तो अभी हम क्या करेंगे, as we are discussing the concepts first, we'll not be writing the code inside of HackerRank का editor. We'll be just checking the problem statement as if it is just another problem statement for us, and we will be coding it simultaneously on the online compiler. जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जाके फाइनली 2 मिनट में पूरा कोड जो है वो HackerRank के एडिटर पे लिख देंगे. ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग इज, सबसे पहली बात, वेरिएबल्स आई डी एंड एस. आई इज एन इंटीजर, डी इज अ डबल, एस इज अ स्ट्रिंग. वो पहले से इनिशियलाइज्ड है. तो मैं क्या कह रहा हूं, आई D and S are already initialized. So let me create I, D. ठीक है, लेकिन यहाँ पे I is integer and D is double. So मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, integer I, double D and S जो है it is a string. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, character S of 100. ठीक है, and since it is initially पहले से इनिशियलाइज, तो उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं. लेट मी गिव एन इंटीजर वैल्यू, लेट इज से 10, कुछ भी वैल्यू, डबल वैल्यू लेट इज से आई गिव इट 12.5, एंड सिंस इट इज अ कैरेक्टर विच इज इनिशियली इनिशियलाइज, मैं उसको दे देता हूँ वही कैरेक्टर जो हमें प्रिंट करना है. तो हैकर रैंक एंड अ स्पेस. ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? एनी डाउट स्टिल हियर? आंसर इन द चैट, यस नो? नो, ओके. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम डन. अभी क्या करना है, वी हैव टू रीड 3 लाइन्स ऑफ इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है, इनपुट फॉर्मेट देखने बोल रहे हैं. तो ठीक है, इनपुट फॉर्मेट देखते हैं. द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर. देखो, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर जिसको हमें आई के साथ सम करना है. द सेकेंड लाइन कंटेन्स अ डबल जिसको हमें डी के साथ सम करना है. द थर्ड लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग जिसको हमें ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड एस के साथ कॉन्कैटिनेट करना है. सो लेट अस टेक दिस स्लो. अब देखो हो क्या रहा है, आई नीड अनदर इंटीजर वेरिएबल, आई नीड अनदर डबल वेरिएबल एंड आई नीड अनदर कैरेक्टर वेरिएबल. तो आई कैन ऑलवेज डिफाइन देम हियर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं अलग से डिक्लेयर कर रहा हूँ इनको. सो व्हाट विल आई से, लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम द स्क्रीन. आई विल से इंट i2, एंड सिंस आई एम यूजिंग, इसको i2 ही रखते हैं. ठीक है, दिस इज माई इंटीजर वेरिएबल, सेकेंड वन. देन आई हैव डबल i2 d2 एंड देन another character, so char s2, उसको भी मैंने बोल दिया 100 characters it can store. Now what do I have to do, I have to take these values from the user. Therefore I will say scanf %d for the integer, and therefore यहाँ पे आएगा and i2. Then I have to take this double value from the user, so I will say double के लिए %d नहीं, we write %lf. ठीक है, and this double value is d2, so I am writing d2, and then finally I have to take a string, so I'll say scanf, and we saw how to take a string input, percentage square bracket open close negate \n. ये क्या कर रहा है, ये it is telling that \n के अलावा कुछ भी दिखे तो उसको एक्सेप्ट करना, \n मिले तो एक्सेप्ट मत करना. एक्सेप्ट करके स्टोर कहां पे कर रहे हैं हम, वी आर स्टोरिंग इट इनसाइड ऑफ s2. क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को? आर यू गेटिंग दिस? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो जब भी यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप टेस्टिंग इट व्हाइल यू आर राइटिंग इट. तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो इंटीजर i2 है, ये जो डबल d2 है, और ये जो कैरेक्टर सेकेंड स्ट्रिंग है, आर दे एक्चुअली गेटिंग स्कैन्ड. लेट अस चेक. अच्छा उसके पहले यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आउटपुट फॉर्मेट में, देखो सम ऑफ बोथ द इंटीजर्स. ठीक है, सम ऑफ बोथ द डबल्स स्केल्ड टू 1 डेसिमल प्लेस. ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू स्केल दिस टू 1 डेसिमल प्लेस.
वो कैसे करना है लेट अस सी बाद में, बट अभी हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू सी कि जो मैं चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअल में स्कैन भी हो रही है क्या। तो कैसे पता चलेगा स्कैन हो रही है क्या, उसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग द आइडिया क्या कर रहे हैं हम। वी हैव स्कैन्ड I2, D2 एंड S2, हम एक बार उसको प्रिंट करा रहे। सिमरन, स्कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इज वी हैव इनिशियलाइज्ड I, D एंड S, वो प्री इनिशियलाइज्ड हैं हैकर रैंक में। हमने क्या किया, हमें क्या करना है, वी हैव टू डिक्लेयर अनदर इंटीजर I2, अनदर डबल D2, अनदर एरे S2, और हमने क्या किया है, वी हैव एक्सेप्टेड I2 का वैल्यू फ्रॉम द यूजर, D2 का वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड S2 का वैल्यू फ्रॉम द यूजर। व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज, इसके लिए आपको कल का सेशन का वीडियो देखना पड़ेगा विच इज देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, एक बार चेक कर लेना, आपको ये लाइन क्या लिखा है समझ में आ जाएगा। टू जस्ट टेल यू, इसमें यही लिखा है कि यू डोंट टेक एनीथिंग दैट इज इक्वल टू अ बैकस्लैश n, बैकस्लैश n के अलावा जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करो और उसको S2 में स्टोर कर दो। ठीक है, दैट इज द बेसिक मीनिंग। इफ यू आर गेटिंग स्टक ओवर हियर प्लीज चेक डे 0 का वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो अभी हमने I2, D2 और S2 के वैल्यूज यूजर से स्कैन कर लिए। लेट अस सी इफ दे हैव बीन स्कैन्ड। कैसे चेक करेंगे, उसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट करा के अगर प्रिंट हो रहा है दैट मीन वी आर रनिंग राइट ऑन ट्रैक। सो आई हैव टू प्रिंट द फ्लोट, द डबल वैल्यू, सो D2, एंड फाइनली स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आई विल यूज पुट S2। तो कायदे से होना क्या चाहिए, I2, D2, S2 की वैल्यू मैं लूंगा और I2, D2, S2 प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट अस सी इफ दैट इज हैपनिंग। इफ आई रन दिस, सबसे पहले I2 की वैल्यू एंटर करनी है, लेट अस से 2, उसके बाद डबल की वैल्यू एंटर करनी है, लेट मी से द डबल वैल्यू इज 2.2। नाउ व्हाट शुड हैपन, मैंने एंटर दबाया एंड उसने 2 आउटपुट किया, 2.2 आउटपुट किया, और उसने स्ट्रिंग का तो मुझसे इनपुट लिया ही नहीं, उसने खुद से ही कुछ तो स्ट्रिंग का इनपुट ले लिया। बट कायदे से होना क्या चाहिए था, वो I2 का इनपुट ले, D2 का इनपुट ले, और फिर वो स्ट्रिंग का इनपुट ले। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी वन मोर टाइम विद डिफरेंट वैल्यूज, एक बार चेक करते क्या हो रहा है। मैं इधर बैकस्लैश n डाल देता हूँ ताकि आउटपुट जो है वो नए लाइन पे है। सो इफ आई रन दिस अगेन फॉर यू एंड लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, मैंने एक इंटीजर डाला एंड मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने एक फ्लोट वैल्यू ली 3.4, मैंने एंटर प्रेस किया। नाउ इट शुड हैव टेकन अ स्ट्रिंग वैल्यू, इट शुड हैव टेकन अ स्ट्रिंग फ्रॉम मी एज एन इनपुट, बट उसने नहीं लिया। लेकिन डिस्प्ले करने के टाइम पे वो इंटीजर डिस्प्ले कर रहा है, डबल डिस्प्ले कर रहा है, और वो कुछ तो अलग ही स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है जो उसने मुझसे एक्सेप्ट नहीं किया था। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, लेट अस चेक एंड विल सी हाउ स्कैनफ एक्चुअली वर्क्स। तो मान लो कि ये एक बफर है, ठीक है, दिस इज द बफर। बफर में क्या हो रहा है, जो भी यूजर से इनपुट आ रही है वो एक एक करके इस बफर में स्टोर होते जा रही है, और स्कैनफ क्या कर रहा है, स्कैनफ हैज एन एक्सेस टू दिस बफर। तो स्कैनफ क्या करेगा, एक एक चीजें यहां से रीड करते जाएगा एंड यहाँ पे मैच करेगा, इट विल सिंपली मैच दिस। ठीक है, तो पहले बफर में क्या स्टोर हुआ, I2 की वैल्यू स्टोर हुई। स्कैनफ क्या करेगा, स्कैनफ चेक करेगा कि बफर के अंदर सबसे पहले इंटीजर वैल्यू कौन सी है, इट विल टेक दैट। आर यू गेटिंग दिस, व्हाट इज द बफर डूइंग। तो जब मैंने सबसे पहले आई एंटर्ड द वैल्यू 2 इंटीजर, इट गॉट स्टोर्ड ओवर हियर, देन आई एंटर्ड, मैंने एंटर दबाया तो बैकस्लैश n यहाँ पे स्टोर हुआ, देन आई स्टोर्ड अ डबल विच वॉज 2.2, तो वो डबल वैल्यू स्टोर हुई, फिर मैंने एंटर दबाया तो एक और बैकस्लैश n यहाँ स्टोर हो गया। देन यहाँ पे कायदे से स्ट्रिंग आना चाहिए था, बट उसने मुझसे स्ट्रिंग का इनपुट लिया ही नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहले स्कैनफ क्या करेगा, इट विल टेक दिस इंटीजर, ठीक है, और उसको स्टोर कर दिया उसने यहां से लेके I2 के अंदर। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट स्कैनफ। ठीक है, उसके बाद जब ये सेकंड स्कैनफ पे गया, द स्कैनफ विल से ओके आई नीड अ डबल वैल्यू। ठीक है, सो इट विल से यार ये बैकस्लैश n है, आई नीड अ डबल वैल्यू, so it will scan this but it will not take it, it will simply go over there and take this double value and take it to D2 में स्टोर कर दिया। ठीक है, बट जब वो थर्ड स्कैनफ पे आया तो उसने क्या देखा,
कि बैकस्लैश n के अलावा जो भी आए वो स्कैन करके स्टोर करो, वरना स्टोर मत करो। तो व्हेन इट मूव्ड अहेड ऑफ द बफर, उसको सबसे पहले मिला बैकस्लैश n, एंड हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि बैकस्लैश n दिखा तो स्टोर मत करना, एंड दैट इज द रीजन S2 के अंदर कंपाइलर ने कुछ भी स्टोर नहीं किया, क्योंकि हमने उसको क्या बोला था, बैकस्लैश n दिखा तो स्टोर मत करना, एंड उसको बफर में स्ट्रिंग शुरू हो रहा है यहाँ से, स्ट्रिंग शुरू हो रहा है यहाँ से, लेकिन उसको बफर में सबसे पहले क्या मिल गया, बैकस्लैश n। ये बैकस्लैश n कहाँ से आया, ये डबल के बाद जो मैंने एंटर प्रेस किया था वहां से। सो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, अ scanf it just peeks into बैकस्लैश n, it just peeks into बैकस्लैश n, बट वो उसको स्टोर नहीं करता कभी, ठीक है। होता क्या है कि जब दूसरा scanf आएगा, दिस इज scanf नंबर 1, दिस इज scanf नंबर 2, तो दूसरा scanf जो है वो इस बैकस्लैश n को स्टोर करता है, क्योंकि दूसरे बैकस्लैश n को बफर में सबसे पहले पिछले scanf का बैकस्लैश n मिलता है। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग दिस? ये हो क्या रहा है? तो हो एग्जैक्टली ये रहा है कि मेरा जो scanf है उसको बैकस्लैश n को है, उसको बैकस्लैश n नहीं स्टोर करना, बट इट इज स्टिल एनकाउंटरिंग इट। सो देर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम क्या कर सकते हैं, whenever we are writing this scanf, and when you are writing percentage and then बैकस्लैश n एंड आप इसको स्टोर कर रहे हो S2 में, जब आप ये लिखते हो, मुझे ये पता है कि इसके ऊपर वाले scanf से जहां पे मैंने डबल वैल्यू एक्सेप्ट की थी एंड उसको स्टोर किया था मैंने D2 में, इस वाले scanf का एक बैकस्लैश n अभी भी बफर में पड़ा हुआ है, जो ये बैकस्लैश n एक्सेस कर लेगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में कुछ नहीं स्टोर होने वाला। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू डोंट गिव एक्सेस ऑफ दिस बैकस्लैश n टू दिस scanf। कैसे? व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, आप यहाँ पे बीच में एक और scanf लिखो एंड यू राइट ओवर हियर यू स्कैन अ बैकस्लैश n। तो ये scanf क्या करेगा, इट हैज टू स्कैन अ बैकस्लैश n। तो बैकस्लैश n कहां से स्कैन करेगा, जो ऑलरेडी बफर में प्रेजेंट है। तो बफर के अंदर प्रेजेंट scanf को इट विल स्कैन, एंड नाउ दिस वाज द इंटीजर, दिस वाज द बैकस्लैश n फ्रॉम द इंटीजर, दिस वाज द डबल, दिस वाज द बैकस्लैश n फ्रॉम द डबल, और उसके आगे स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा। सो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन, ये जो येलो में लिखा हुआ scanf है वो इस बैकस्लैश n को एक्सेप्ट कर लेगा, स्कैन कर लेगा। सो नाउ दिस scanf कैन सक्सेसफुली टेक द स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट यस नो। पिछले वाले scanf से एक बैकस्लैश n बच गया था, जिसको आगे वाला scanf अगर एक्सेस कर लेता तो वो स्ट्रिंग को नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि मैंने लिखा बैकस्लैश n मिला तो स्टोर मत करना। तो मैंने क्या बोला, एक काम कर, तू लोड मत ले इतना, लेट आई विल राइट वन मोर scanf विच कैन एक्सेस दिस scanf दिस बैकस्लैश n। तो जो ऊपर scanf लिखा हुआ है दैट विल होल्ड दैट बैकस्लैश n, ताकि, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, सी, अब मैं क्या करूंगा, इधर एक scanf लिखूंगा एंड इसके अंदर आई विल राइट बैकस्लैश n। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, फर्स्ट scanf का बैकस्लैश n सेकेंड scanf ले लेगा, सेकेंड scanf का बैकस्लैश n इसने ले लिया, तो अब थर्ड scanf के लिए कोई बैकस्लैश n बचा ही नहीं। क्या बचा, सिर्फ स्ट्रिंग बचा इनसाइड ऑफ द बफर विच इट विल टेक नाउ सक्सेसफुली एंड स्टोर इट इनसाइड ऑफ S2। So if we run this and see what is happening, the first thing that we take is an integer value 2 and then a float value 2.3, and then now it will tell me कि अच्छा now you enter the string, now I am able to enter the string. So let us say hacker rank by Abhijit. तो if I enter, अभी देखो क्या हो रहा है, इंटीजर भी प्रिंट हो रहा है, डबल वैल्यू भी प्रिंट हो रही है एंड स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। Did you get this? This was a very important concept with respect to scanning strings. ये जो scanf में आप ले रहे हो, what it is doing is it will get hold of a बैकस्लैश n which was not taken care of by this scanf। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बीच में एक नया scanf डाल दिया। Are you getting this?
ओके, गौरव इज आस्किंग प्रीवियस scanf में भी परसेंट lf कैन बी एड \n. कहाँ पे गौरव? आई एम नॉट गेटिंग यू. चलो नो, अभी आगे का देखते हैं, बाद में आई विल गेट बैक टू योर डाउट दिस टाइम. ठीक है. सो नाउ द थिंग इज, ये तो मुझे सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना था. मान लो मुझे 50 स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने हैं, तो हर स्ट्रिंग के पहले आई वुड हैव टू राइट दिस \n, विच इज अ वेरी बोरिंग थिंग. हर स्ट्रिंग के पहले आई वुड हैव टू राइट दिस \n, विच इज अ वेरी बोरिंग थिंग. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? यूजिंग द स्कैन सेट ओनली. देखो स्कैन सेट क्या है, इसके अंदर यू कैन राइट व्हाट ऑल टू एक्सेप्ट एंड व्हाट ऑल टू नॉट एक्सेप्ट. जब मैं लिखता हूँ निगेट \n, तो ये क्या कहता है कि \n के अलावा कुछ भी है उसको एक्सेप्ट कर लो. तो सिंपली इफ आई राइट ओवर हियर लाइक दिस \n, इसका मतलब क्या होगा? क्या \n को ही एक्सेप्ट करना. ठीक है. नाउ दिस वाज रिटन लाइक दिस परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख देता हूँ. बट डू आई हैव टू स्टोर दिस \n? No, I don't have to store this \n. So if you are using the scan set character to scan something, and if you don't want to store it, तो परसेंटेज और स्कैन सेट के बीच में आप एक स्टार ऐड कर देते हो. ये स्टार क्या बताता है? स्कैन बट डोंट स्टोर. ठीक है, स्कैन बट डोंट स्टोर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस \n ओवर हियर, मैं सिंपली यहाँ पे मेरे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के पहले मैं लिख देता आई वॉन्ट टू स्कैन अ \n, जो पिछले स्कैनर से आ रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू स्टोर इट, देयरफॉर आई विल राइट अ स्टार ओवर हियर. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर? सबको समझ में आ रहा है? आंसर इन द चैट, यस नो. यस. सो इफ यू रन दिस, अब क्या हो रहा है? सेम थिंग. फर्स्ट आई एम एंटरिंग एन इंटीजर, देन आई एम एंटरिंग अ फ्लोट, देन आई एम एंटरिंग some string, and if I enter this, see, things are working perfectly as they are supposed to. अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे अगर स्टार डाल देता, तो इसका मतलब क्या है? You take the string but you don't store it. तो if I run this now, what will happen? मैंने एक इंटीजर इनपुट किया, ठीक है, दिस इज द डबल वैल्यू. नाउ आई एम एंटरिंग सम स्ट्रिंग but I am not storing it. Therefore, what will happen? 2 print हुआ, 2.3000000 print हुआ, but the string got scanned but didn't get stored, क्योंकि स्कैन सेट के पहले मैंने यहाँ पे स्टार डाल दिया था. तो मेक श्योर कि स्टार आप कहाँ डालो? यहाँ पे. डोंट पुट द स्टार ओवर हियर whenever you are scanning things. Is this all right? Answer in the chat, yes, no. Yes. तो इसका मतलब क्या है? Now I can comfortably take, I've declared I, D and S. I can comfortably take 3 set of values I2, D2 and S2. अब मुझे बस क्या करना है? Very simple. The first thing, on the first line I need I plus I2. So इधर मैंने लिखा I plus I2. ठीक है. In the second line I have to print D plus D2. So I'll say D plus D2. ठीक है. एंड यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करना है. तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर आते हैं. बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यहाँ तक चीजें समझ में आई? व्हाट हैव आई रिटन? पहले लाइन पे मैंने प्रिंट किया जो इनिशियलाइज्ड इंटीजर था प्लस जो मैंने स्कैन किया है यूजर से. सेकेंड पे जो इनिशियलाइज्ड डबल था प्लस जो मैंने स्कैन किया है यूजर से. नाउ आई हैव टू कॉन्कैटिनेट द टू स्ट्रिंग्स एंड आई हैव टू प्रिंट देम. ठीक है. तो कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं वो देखते हैं. बट क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? Are you getting this? Answer in the chat, yes, no. D2 के इनपुट में can we add this way scanf percentage LF \n. Let us check. ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि क्या होगा. So अगर यहाँ पे \n डालते हैं एंड यहाँ से ये चीजें हटा देते हैं, तो let us see if things are getting stored correctly or not. ठीक है. एक सेकेंड, यहाँ पे लेट मी पुट एस
ताकि पता चले कि एग्जैक्टली स्टोर हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इफ आई रन दिस अगेन, ठीक है, इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू एंड सम स्ट्रिंग, या इट इज गेटिंग स्टोर्ड। तो ठीक है गौरव, यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है, बट इट इज कीप थिंग्स टू द स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वैसे ही रखते हैं उसको। अभी क्या करना है, दो चीजें तो सॉर्ट हो गई, वी आर एबल टू प्रिंट द इंटीजर वैल्यू, वी आर एबल टू प्रिंट द डबल वैल्यू, बट यहाँ पे क्या लिखा था, द फाइनल सम शुड बी स्केल टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर आपको जो डबल है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इट वाज गिविंग यू द आंसर। इफ यू वांट टू स्केल इट यू विल सिंपली राइट हियर 0.1। 0.1 का मतलब क्या है, सिर्फ वो 1 डेसिमल तक का आंसर देगा। इज दैट ओके? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सबको? आंसर इन द चैट। Yes, okay. Now the last thing that we have to talk about is string concatenation. So let me just open a new scratchpad. ठीक है, string concatenate करना मतलब क्या? Now see, in C you have this string concatenation function जिसको आप बोलते हो strcat, जिसके अंदर आप दो strings देते हो s1 और s2। तो होता क्या है कि s2 को वो उठाता है और s1 के आगे स्टोर कर देता है। ठीक है, द स्ट्रिंग concatenation फंक्शन इज प्रेजेंटिंग string डॉट h। ठीक है, string डॉट h। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा इंक्लूड #include string डॉट h। ठीक है, इज दैट ओके? देयर इज अ लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्ड stringcat, strcat, string concatenate करता है। सो इफ योर string 1 इज hello एंड इफ योर string 2 इज world, ठीक है, और अगर आप लिखते हो strcat ब्रैकेट में s1 s2, तो इसका आउटपुट अगर आप प्रिंट करते हो तो ये क्या करता है एग्जैक्टली, s2 को जो है उसको कॉपी कर देता है s1 के अंदर। सो नाउ s1 विल बी हेलो वर्ल्ड एंड s2 विल बी द सेम विच इज वर्ल्ड। ठीक है, बट वी विल नॉट गो विद द लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन बहुत बार धोखा दे देते हैं। So let us see how exactly atomically मतलब एरे लेवल पे एग्जैक्टली चीजें कैसे काम कर रही हैं। सो मैंने क्या बोला था, जो स्ट्रिंग है इट इज एक्चुअली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर मैं लिखता हूं कैर एस ऑफ 100 इज इक्वल टू हैकर रैंक। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, मेमोरी के अंदर एक एरे जनरेट हो रहा है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैरेक्टर टाइप के होंगे एंड ईच ऑफ दिस कैरेक्टर विल ऑक्यूपाई 1 ब्लॉक। सो H A C K E R R A N K। ठीक है, अब होता क्या है कि सिंस आई हैव डिफाइंड दिस एस एरे टू बी ऑफ द साइज 100, इसका मतलब क्या है कि वो 100 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कितने कैरेक्टर स्टोर किए, HACKER RANK, 10 कैरेक्टर्स। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू हैव इनिशियलाइज्ड, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव इनिशियलाइज्ड अ स्ट्रिंग यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ कैरेक्टर एरे, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुका है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज this character which we called as a null character। ठीक है, this is called as a null character। जहां पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हुई वहां से जितने भी स्पेसेस बचे हैं उसमें सब में ये नल कैरेक्टर आ जाता है। नल कैरेक्टर अगर कंपाइलर ने देखा तो कंपाइलर को ये पता चलता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है? आंसर इन द चैट यस नो। ठीक है, अच्छा, दिस इज वेरी बेसिक। इसका जो इंडेक्सिंग है वो जैसे एरे में इंडेक्सिंग करते हैं बिल्कुल सिमिलर है। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। so if I talk about the length of the string, ठीक है, there is a function, a library function inside of string.h जिसको हम बोलते हैं strlen, which gives you the string length। so if I say s की string length then it would be 10।
इसका मतलब क्या है, इंडेक्सिंग होगी 0 से लेके 9 तक, एंड 10th पे आएगा \n, \0, सॉरी, दिस इज अ null character. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no? Yes? अच्छा, don't ever confuse \0 with the character 0. \0 की अगर आप ASCII वैल्यू चेक करोगे तो इट इज 0, एंड 0 की अगर आप ASCII वैल्यू चेक करोगे तो इट इज 48. ठीक है, सो \0 is null character. It tells you that the string has now ended. 0 is a character जिसकी ASCII वैल्यू है 48. ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? आंसर इन द चैट, यस, नो? ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, हाउ टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स. लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैर स्ट्रिंग 1, जिसके अंदर साइज है उसकी 100, लेकिन मैं उसके अंदर बस स्टोर कर रहा हूँ हेलो, जो 5 कैरेक्टर्स हैं. एंड इफ आई से कैर s2, जिसकी साइज है 100, एंड उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ वर्ल्ड, जिसकी अगेन साइज है 5 कैरेक्टर्स की. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, इफ आई कैन विजुअलाइज एरे s1, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जहां पे पहला वर्ड है h, पहला लेटर है h, दूसरा कैरेक्टर है e, देन देयर इज l, then there is l, then there is o. If I have to index this is 0th index, 1 2 3 4, एंड यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गया. तो उसके बाद बाकी जितने भी स्पेसेस बचे हैं, सिंस इट कैन स्टोर 100 एलिमेंट्स एंड बाय इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0, तो 0 से 99 इंडेक्स तक जितने भी बाकी बच गए स्पेसेस वहां पे स्टोर हो जाएगा \0. यहाँ पे भी \0 और एंड में भी \0. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no? Yes? Okay. Yes. Now I can similarly visualize this string s2 to be of a similar type, जिसमें हो क्या रहा है, there is w, there is o, there is r, there is l, there is d. उसके आगे, so this is 0th index, 1 2 3 4th index. उसके आगे जितने भी बॉक्स बच गए 99th इंडेक्स तक, उसमें स्टोर हो जाएगा \0, \0, \0, \0. ठीक है, नाउ वेरी इट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज द सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल. क्यों? व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्सेसिंग दिस एलिमेंट, 0th एलिमेंट ऑफ s2, एंड यू आर टेकिंग इट ओवर हियर, क्योंकि हेलो के आगे ऐड करना है ना हमें. तो दिस is which index? This index is 5th index. Basically this is the index is string length of s1. क्यों? क्योंकि देखो, what is the string length of s1? The string length of s1 is 5, लेकिन मैं 0 से स्टोर कर रहा हूं, तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट, लेकिन string length की वैल्यू is 5. That means if I go to s1 of string length of s1, मतलब क्या है, मैं कहां पे जा रहा हूं, मैं इस एरे s1 में जा रहा हूं और इंडेक्स है string length of s1. so string length of s1 is a number whose value is 5. so if I'm going to the 5th position of this array s1, I'll get here, जहां पे पहला \0 आ रहा है. Are you getting this? ये चीज समझ में आ रही है सबको? आंसर इन द चैट, yes, no? Yes, okay. So if I have to take s2 का 0th element and I'll have to take it over here, then what do I have to do? I have to take the first element and take it over here. Then I have to take the third element, then I have to take it to the next thing. So what is happening is, you can see that we are iterating. आप s1 में आगे बढ़ते जा रहे हो starting from this position, आप s2 में आगे बढ़ते जा रहे हो starting from the 0th position. So if you want to iterate upon something, you use for loop. So we'll use variable I to iterate till here, from here, and we'll use the variable j to iterate into the s2 array. But since I हमने पीछे declare कर दिया था using for declaring the integer, let's not use I and j. We can use p, q and r. So I'm just saying p is this, q is this, and अगर कभी जरूरत पड़ी तो r use करेंगे.
So what am I saying is, you start the value of q from 0. So q is used to access elements of S2 string. So you start the value of q from 0. आपको कहां तक जाना है? इस स्ट्रिंग के एंड तक, मतलब कब तक? जब तक आपको पहली बार \0 इस स्ट्रिंग में नहीं मिल जाता तब तक. सो आई विल से कहां तक जाना है? जब तक तो सेकेंड स्ट्रिंग है उसका जो एलिमेंट है, ठीक है, द एलिमेंट इनसाइड ऑफ दिस डज नॉट बिकम इक्वल टू \0, तब तक you increment q. Are you getting this? What we have written? We are saying that start the value of q from 0. q को इंक्रीमेंट तब तक करते जाओ जब तक S2 का qth इंडेक्स जो है वो \0 नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल q की वैल्यू 0, दैट मीन्स यू आर एक्सेसिंग S2 ऑफ 0 विच इज w. q की वैल्यू 1, तो आप S2 of 1 will be what? O, WORLD वर्ल्ड. तो सिमिलरली एंड में एक ऐसा Q आएगा जिसमें S2 of Q अगर आप एक्सेस करने जाओगे तो आपको मिलेगा \0. तो वहां पे आके आपको रुक जाना है. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. स्टार्ट एट Q is equal to 0. Q को इंक्रीमेंट करो तब तक जब तक S2 का जो एलिमेंट है वो एंड \0 नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता. आर यू गेटिंग दिस? Answer in the chat, yes, no? Yes. So you are traversing into this S2 array, but आपको सिर्फ ट्रैवर्स नहीं करना है, आपके इसके करंट qth एलिमेंट को उठा के इसके यहाँ पे स्टोर करना है. सो व्हाट इज दिस इंडेक्स? व्हाट इज दिस इंडेक्स जहां से मुझे स्टोरिंग शुरू करना है? दिस इंडेक्स जिसको मैं p से बोल रहा हूं, सो दिस विल बी व्हाट? स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1. Are you getting this, everyone? ये चीज समझ में आ रही है? P is equal to string length of S1. Is everyone getting this? Please answer in the chat. Just yes. To clear things, yes, just to clear things one more time, एक बार quickly. If this is my S1 array, if this is my S2 array, I will use P to traverse this S1 array. I will use Q to go through this S2 array. मुझे यहां से 0 से शुरू करना है. 0 से कहां तक जाना है? जब तक कोई भी एक एलिमेंट \0 नहीं हो जाता तब तक मुझे Q को इंक्रीमेंट करना है. लेकिन मुझे P को 0 से शुरू नहीं करना है. क्यों? क्योंकि S1 स्ट्रिंग में ऑलरेडी कुछ कैरेक्टर्स पड़े हैं. मुझे कहां से शुरू करना है? जहां पे मेरा पहला \0 मुझे मिल रहा है. वो कहां पे मिल रहा है? सो इफ द लेंथ इज 5, 0 1 2 3 4, ये तो कैरेक्टर्स हो गए. तो फिफ्थ इंडेक्स ये 5 कहां से आया? विच वॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1. सो आई हैव टू स्टार्ट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम strlen, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस S1. सो मैं p को शुरू कर रहा हूं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1. दैट इज आई हैव रिटन इट ओवर हियर. एंड व्हाट एम आई डूइंग? यू टेक द वैल्यू of S2, you store it inside of where S1 का p is pointing. Then you are incrementing the q. इसलिए यहाँ पे I will write p plus plus. तो आप इंक्रीमेंट करो p को. आप Are you getting this? सबको समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? Answer in the chat. While inputting white space in a string input, does it store? No 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 no. जब आप देखो होता क्या है, जब आप स्ट्रिंग में आप लिख रहे हो हेलो एंड अगर स्पेस में करके आप लिखोगे वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या होता है कि HELLO एंड देन वो स्पेस रखेगा यहाँ पे, फिर WORLD एंड फाइनली यहाँ पे आएगा \0. तो स्पेस जो व्हाइट स्पेस होता है इसको भी वो स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर. ठीक है, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर. तो दिस इज हाउ यू टेक वैल्यूज यूजिंग फॉर लूप फ्रॉम वन स्ट्रिंग and start storing it inside of the second string. Are you getting this? But ये तभी काम करेगा provided you have enough space inside of the first string to start with. ठीक है, अगर मान लो S1 की लेंथ ही होती 10, तो 5 तो हेलो आ गया, तो S2 के कितनी चीजें यहाँ पे S1 में हम कॉपी कर पाते? सिर्फ 5, क्योंकि उसकी लेंथ है 5. लेंथ टोटल लेंथ 10 आप स्टोर कर सकते हो उसके अंदर. So one thing we have to check is if you are concatenating two strings, just make sure that this string
को आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, जिस स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर रहे हो उस स्ट्रिंग में स्पेस रहे कि वो सेकेंड स्ट्रिंग को अपने साथ कॉपी करने पे अकोमोडेट कर ले. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट, yes, no. Okay, so this was the concept. Let us now go back to HackerRank to solve this. तो यहाँ पे करना क्या है? It is very simple. You have to declare second integer, double and string variable. So I'll say int second integer i2, ठीक है? Then second double, so double d2, then second string variable. So I'll say char s2 of 100, ठीक है? Now you have to scan these values, read and save the integer, double and string to your variables. Okay, so I'll say scanf percentage d for the integer, ठीक है, and i2. Then you have to scan the double value also. So you will copy, you will paste, percentage d percentage lf we'll use, and then we use d2 to scan the array string. What we'll do, we'll say scanf, ठीक है, उसके अंदर what will I write, percentage, and I want to take a backslash n from the previous one, but I don't want to store it, so there is a star. Then what do I have to say? I have to take all the things which are not backslash n and take it and store it inside of s2. यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? Then we have to print the sum of both integers over here. So we'll say printf percentage d, integers का sum भी integer ही आएगा. So I'll say, अब देखो, if I expand this, यहाँ पे they have already declared I, d and s. So यहाँ पे what will be the output? I plus I1. Then print the sum of the double variables. So printf percentage 0.1 lf. Why 0.1? Because उनको 1 decimal digit तक चाहिए था. Then what will we say? d plus d1. अब क्या हो रहा है? We need these outputs on the sorry, I1 नहीं, I2. My bad. We declared it as I2, and similarly we declared it as D2. ठीक है. We need them on new line, so therefore I'll write a backslash n over here. यहाँ पे भी एक backslash n. अब हमें string concatenate करना है, but here is the issue. The issue is the character that they have defined. उन्होंने यहाँ पे साइज नहीं दी है, वहां पे उन्होंने सीधा डिफाइन किया है. तो अगर आप साइज नहीं देते हो, ठीक है, let us see what is happening over here. What they have done, they have just written something like this. They have written char s, they didn't give the size but they initialized it. जब आप साइज मेंशन नहीं करते हो और सीधे इनिशियलाइज कर देते हो तो क्या होता है कि s will take उतना ही अमाउंट, उतना ही स्पेस जितना हैकर रैंक ऑक्यूपाई कर रहा है. सो HACKERRANK 10 कैरेक्टर्स. तो s कैन ओनली अकोमोडेट 10 कैरेक्टर्स. क्यों? साइज तो यहाँ डिफाइंड नहीं है. सो व्हाट विल इट डू? इट विल बाय डिफॉल्ट ऑक्यूपाई ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ साइज दैट इज टेकन बाय द इनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे s2 को कॉन्कैटिनेट करना है फॉर लूप यूज करके, तो मैं उसको s के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि s बस 10 कैरेक्टर्स को अकोमोडेट कर सकता है, which it is already doing. So what do I have to do? The simple thing to do is you create one s3 array of characters. s already है मेरे पास, s1 already है मेरे, s2 already है मेरे पास. तो सबसे पहले s को यहाँ पे कॉपी करो पूरा, लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. जब पूरा s कॉपी हो जाए, देन यू स्टार्ट कॉपिंग s2 फ्रॉम हियर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. Are you getting this? Why cannot we concatenate using a for loop there? Why do we need another array? Because s का length was specified by HackerRank and we cannot change it because this part is logged. अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखने भी जाऊँ तो I am not able to write it over here because this part is already logged by HackerRank. तो अब मुझे क्या करना है? Let us see how do we concatenate two strings into another third string. ये चीज देख लेते हैं. So quickly let us have a look. Let us say this is my string s, ठीक है,
एंड दिस इज द स्ट्रिंग। उसका 0th इंडेक्स ये है, उसका फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकेंड इंडेक्स ये है, ऐसे करते करते कुछ तो होगा। एंड फाइनली \0 कहां से स्टार्ट होगा? एट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस। ये चीज सबको पता है, विल नॉट स्ट्रेस मोर अबाउट इट। ठीक है, S2 में भी सेम चीज हो रहा होगा। S2 जो स्ट्रिंग है, एरे है मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, वो भी 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3। उसका जो पहला \0 उसको वो एनकाउंटर करेगा, दैट विल बी एट वेयर? दैट विल बी एट strlen of s। इज दिस क्लियर टू यू? ये इधर तक समझ में आ रहा है चीजें? इज दिस मच क्लियर टू यू? आंसर इन द चैट, yes, no? Yes, okay. Now what do I have to do? I have created another S3 of size 100 only. अब मुझे क्या करना है? I need to take S first, start storing it into S3, then I need to take S2, and जब S3 खत्म हो जाए तो जिस जगह पे S3 खत्म हो रहा है उसके बाद से मुझे जिस जगह से S खत्म हो रहा है पूरा कॉपी होना, उसके बाद से I need to start S2 copying. Are you getting this? Answer in the chat, yes, no? Repeat S2 part please. Okay, देखो हो क्या रहा है, जो S है that was hacker rank, HACKERRANK। ठीक है, तो S कैसे स्टोर हो रहा होगा? S will be stored like this, HACKERRANK and finally a \0। बट ये जो मेरा S2 है, it is also an array of characters। अब उसमें क्या होगा, इसको मैंने इनिशियली स्पेस दी है 100 की, तो अगर मैंने सिर्फ हाई टाइप किया सो इट विल स्टोर ओनली दीज टू। तो थर्ड से \0 स्टार्ट हो जाएगा स्टोर होना बाकी सारे जगह पे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, पहला \0 कहां पे आ रहा है? एट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस एरे। व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस एरे? द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ दिस एरे इज 2। सो इफ यू चेक द इंडेक्सिंग 0 1 2, the first \0 that comes at the string length index of that string। अब चीज समझ में आया? Yes, Sakshi, obviously there will be a loss of memory in S2 also, in S3 also, that is out of our hands। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप ऐसी चीजों से डील कर रहे होते हो जहां पे आपको पता नहीं है कि यूजर कितने इनपुट्स देने वाला है, तब आप क्या करते हो, यू यूज समथिंग कॉल्ड एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम इन ऑल्सो कॉपी, यस यस यस, दैट इज ऑल ट्रू, बिल्कुल सही है। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। बट सी, अगर ये हैकर रैंक नहीं होता तो मैं क्या करता, सीधा S2 को S1 में स्टोर कर देता। बट सिंस S1 इज लॉक्ड, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रॉब्लम ही छोड़ देंगे। अगर S1 पहले से लॉक्ड है तो मुझे कुछ ना तरीका ढूंढना पड़ेगा ना टू कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग्स। तो इसलिए मैंने एक थर्ड एरे बना दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस, ओके। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टोर नाउ, हाउ डू आई अप्लाई द फॉर लूप कॉन्सेप्ट ओवर हियर? तो देखो हो क्या रहा है, व्हाट आई विल डू इज I'll use a p variable to go to traverse S, I will use a q variable to traverse into S2, and I will use a r variable to traverse into S3। सबसे पहले let us forget के S2 करके कोई चीज है। सी, जो हम क्या कर रहे थे, what we were doing, yes जानवी, you are right। जानवी सेइंग कि हम सीधा S और S2 को printf में एक के बाद एक प्रिंट कर सकते हैं, yes, but that is not concatenation जानवी। आप सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को एक के बाद एक प्रिंट कर रहे हो, आप उनको कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू राइट printf %s s and s2, तो आप क्या कर रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को बगल बगल में प्रिंट कर रहे हो, जो आउटपुट की तरह ऐसा दिख रहा है कि कॉन्कैटिनेट हो चुका है। तो हैकर रैंक पे टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे, बट इन एक्चुअलिटी दैट इज नॉट कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि आपने बस प्रिंट किया है उनको बगल बगल में। कॉन्कैटिनेट मतलब अगर आपने स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के साथ कॉन्कैटिनेट किया है तो स्ट्रिंग 1 चेंज हो जाना चाहिए, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 के सारे कैरेक्टर्स आ जाने चाहिए, बट दैट इज नॉट हैपनिंग हियर इफ यू जस्ट प्रिंट इट डायरेक्टली। तो उससे हैकर रैंक के टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, बट कॉन्कैटिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। सो नाउ सी, जो हमने पीछे स्टेप देखा था S2 को S में कॉन्कैटिनेट करने का, द सेम स्टेप्स वी हैव टू डू बट ट्वाइस। फर्स्ट स्टेप S को S3 में डालो, सेकेंड स्टेप S2 को S3 में डालो। ठीक है, सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन, लेट मी क्विकली इरेज दिस पार्ट।
ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां तक का डिस्कशन समझ में आ रहा है सभी को? आंसर इन द चैट तब तक। इज देयर अ वे टू स्टोर द कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इनटू अ सेपरेट वेरिएबल? वही तो कर रहे हैं हम, S3 के अंदर S1 और S2 को कॉन्कैटिनेट करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो माय फर्स्ट स्टेप इज कॉपी S into S3. My second step would be copy S2 into S3. तो S3 बेसिकली क्या हो जाएगा, इफ दिस इज माई S3, तो स्टार्टिंग में उसके अंदर है सारे S के वैल्यूज, फिर मैंने उसके बाद कॉपी कर दिए सारे S2 के वैल्यूज। सो S3 टेक्निकली बिकम्स S1 प्लस S2, दोनों के स्ट्रिंग्स को जो कैरेक्टर्स थे उनको ऐड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? प्लीज आंसर इन द चैट यस नो। ये आइडिया समझ में आया क्या कर रहे हैं? 2 स्टेप कॉपी कर रहे हैं बस। ठीक है, लेट अस नाउ इंप्लीमेंट दिस यूजिंग द फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉपी S इंटू S3। तो नाउ देखो, सिंस वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स, यहाँ पे भी जीरोथ इंडेक्स पे चालू कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल से, और जा कहाँ पे रहे हैं, हमें S को तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक S ऑफ P जो है वो नॉट इक्वल टू \0 आ जाता। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फॉर लूप में P को डालू मैं या R को डालू। सो एक जनरल थंब ऑफ रूल ये ले लो कि आप जिसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है, जिसको कॉपी कर रहे हो, S को कॉपी कर रहे हो, तो अप्लाई फॉर लूप ऑन S। सो व्हाट विल आई से, बट आई ऑल्सो हैव टू इंक्रीमेंट R टू ट्रैवर्स इनटू S3। सो मैं बाहर इनिशियली मैं ये कर देता हूं कि R इज इक्वल टू 0। पहले मैंने R को इनिशियलाइज कर दिया 0। देन आई एम सेइंग फॉर P इक्वल टू 0। सो P इक्वल टू 0 मतलब यहां से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो। देन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, S ऑफ P not equal to backslash of 0, you do P plus plus. This is basically what, this is traversing into S। ये ट्रैवर्स हो रहा है, अब इसको कॉपी करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, S ऑफ P जो भी वैल्यू आपको एक्सेस कर रहे हो, आप एक काम करो, उसको S3 ऑफ R में कॉपी कर दो एंड यू डू R प्लस प्लस। क्या ये चीज समझ में आया? दिस इज डूइंग व्हाट, दिस इज कॉपिंग S in S3. Is this part clear? Is this loop clear to all of you? Answer in the chat yes, no. Yes, okay. Now after that, see where R is. ठीक है, 0 कॉपी कर दिया, 1 कॉपी कर दिया, 2 कॉपी कर दिया, 3 कॉपी कर दिया। लेट अस से S की वैल्यू थी हेलो, R इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0, H कॉपीड, R इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1, E कॉपीड, R इज इक्वल टू L, P is equal to R is equal to 3, P is equal to 3, L copy, R is equal to 4, P is equal to 4, L copy, R is equal to 5, है ना, 0 1 2 3 4, तो ये O भी कॉपी हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे व्हेन द फॉर लूप, जब ये फॉर लूप खत्म हो रहा था, उसके बाद जो मेरा R है उसकी वैल्यू इज 5। आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या चीज समझ में आ रहा है? यस, नो साक्षी, वी कैन नॉट यूज फ्री एस एंड फ्री S2 बिकॉज आप फ्री कब करते हो चीजों को, आप फ्री पॉइंटर्स को करते हो। तो अगर आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया तब आप पॉइंटर्स को फ्री करोगे। ठीक है, अभी फ्री नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, देखो, इफ आई हैव टू ड्रॉ अनदर पिक्चर वेरी क्विकली। ठीक है, सो दिस वाज माय S, इसके अंदर लिखा था HELLO, फिर आ गया था \0, ये मेरा S3। ठीक है, दिस इज माई S3, दिस इज माई S, इंडेक्स 0 इंडेक्स 0। सो व्हाट आई एम सेइंग, इसको P से ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसको R से ट्रैवर्स कर रहे हैं। P इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, तो व्हाट हैपेंड, H कॉपी हो गया। P इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, E कॉपी हो गया। P इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2, L कॉपी हुआ। P इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3, L कॉपी हुआ। P इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 4, O कॉपी हुआ।
अब p इज इक्वल टू जैसे ही 5 हुआ, इसको बैकस्लैश 0 मिल गया, दैट मीन्स द लूप गॉट टर्मिनेटेड। तो p इज इक्वल टू 5 पे लूप तो टर्मिनेट हो गई, लेकिन r की वैल्यू तो 5 ऐसी की ऐसी रहेगी ना। तो मतलब r की वैल्यू अब हो गई 5 विच इज हियर। और यहीं से मुझको क्या करना है, इसी वैल्यू से मुझे स्टोर करना है S2 की वैल्यू 0 से यहां उठा के 5 से मुझे स्टार्ट करना है प्रिंट करना, कॉपी करना। आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रही है सबको? जब फॉर लूप खत्म हुई पहले वाली, तो r की जो वैल्यू है वो उस जगह पे है जहां से मुझे S2 कॉपी करना है, मुझे r को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट यस नो। तो अब जो मेरा दूसरा फॉर लूप रहेगा, दूसरे फॉर लूप को मैं कैसे लिखूंगा? आई सिंपली से दिस। अच्छा, आप कॉपी किसको कर रहे हैं? S2। S2 के लिए क्या यूज कर रहे थे? वेरिएबल q। सो आई से फॉर q इज इक्वल टू 0, S2 ऑफ q नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 q प्लस प्लस। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग, आप S2 ऑफ q लो एंड उसको आप स्टोर कर दो S3 ऑफ r में, एंड फाइनली r प्लस प्लस। ये मेरा सेकेंड लूप हो गया। इससे मैंने क्या किया? कॉपी S2 इन S3। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट यस नो। यस, ओके। तो अब हुआ क्या, लेट मी क्लियर दिस आउट एंड फाइनली लेट अस जस्ट चेक हुआ क्या। दिस वाज माय S, दिस वाज माय S2, दिस वाज माय S3। ठीक है, 0 1 2 3 4 HELLO एंड देन बैकस्लैश 0। ठीक है, मान लो इधर मैंने सिर्फ हाई लिखा है, HI हाई एंड देन बैकस्लैश 0। ठीक है, दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4। दिस माइट लुक वेरी ट्रिवियल, बट थोड़ा देख लो ताकि आगे की चीजों में कभी अटकोगे नहीं तुम लोग। ये ऐसा करते करते जाएगा 99 तक, क्योंकि इसको मैंने डिक्लेयर किया था 100 का। तो ये भी 0 1 2 ऐसे करते करते जाएगा 99 तक, बैकस्लैश 0 रहेगा इसमें। ठीक है, ये है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, व्हाट हैपेंड, 0 0 H प्रिंट हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया, 1 1 E कॉपी हो गया, 2 2 L कॉपी हो गया, 3 3 L कॉपी हो गया, 4 4 L कॉपी हो गया। ठीक है, दिस वाज P, दिस वाज Q, दिस वाज R। जब P की वैल्यू 5 हुई तो बैकस्लैश 0 मिला, पहला फॉर लूप खत्म, मतलब फर्स्ट कॉपी डन। तो अब देखो क्या है, R की वैल्यू अभी भी 5 है एंड Q की वैल्यू अब 0 है। तो R की वैल्यू 5, Q की वैल्यू 0, कॉपी दिस H, तो ये H कॉपी हो गया। R की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 1, कॉपी I कॉपी हो गया। उसके बाद R की वैल्यू 7, ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 2। अच्छा, जैसे Q की वैल्यू 2 हुई, मुझे बैकस्लैश 0 मिल गया, विच मीन्स टर्मिनेट द फॉर लूप। तो अब देखो हुआ क्या, S3 के अंदर क्या है, HELLO HI, लेकिन S3 के अंदर अभी भी बैकस्लैश 0 नहीं है, बट R की वैल्यू अभी भी 7 है, विच इज द लास्ट थिंग जहां पे मुझे बैकस्लैश 0 ऐड करना है। इसीलिए आफ्टर माई लूप 1 एंड आफ्टर राइटिंग माई लूप 2, आई विल राइट S3 ऑफ R इज इक्वल टू कैरेक्टर बैकस्लैश 0। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे बैकस्लैश 0 ऐड हो जाएगा, कि अगर कंपाइलर भूल भी गया ऐड करने, तो मैंने अपनी तरफ से बैकस्लैश 0 ऐड कर दिया, तो इसके आगे के सारी चीजें बैकस्लैश 0 हो जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस फाइनली? ये चीज समझ में आ रही है सबको मैंने क्या किया है? आंसर इन द चैट यस नो। यस, ओके। सो नाउ फाइनली लेट अस गो बैक टू हैकररैंक एंड कोड इट आउट। लेट्स गो टू हैकररैंक। अब मैंने क्या नोटिस किया कि यार मैं S को तो चेंज नहीं कर सकता, कॉन्कैटिनेट C में अगर मुझे करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, S2 की जगह पे एक और S3 कैरेक्टर बना रहा हूँ, कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ जिसका साइज है 100। एंड मुझे P Q और R तीन चीजें चाहिए, सो आई एम डिफाइनिंग P, आई एम टेकिंग अ Q, आई एम टेकिंग एन R ऑल्सो। तो अब मुझे क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, दो फॉर लूप्स लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे बोलना है ये चीज कि देखो R की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, दैट आई एम सेइंग ओवर हियर, ऊपर ही मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर, सबसे पहले
P को यूज करके, P विच इज यूज फॉर S, Q, S2, R, S3. तो P को यूज करके एंड R को यूज करके वी आर कॉपिंग S into S3. I hope you are getting the connection which we had just drawn. So I'll say P is equal to 0 and S of P, ठीक है, S of P not equal to कैरेक्टर बैकस्लैश 0. याद रखना बैकस्लैश 0 इज अ कैरेक्टर, इसलिए हम इसको कोट्स में लिखेंगे. तो इधर तक मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू P प्लस प्लस. अच्छा, अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे कॉपी करना है. तो मैं क्या बोलूंगा, S3 जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R से. R से उसको उसके अंदर ट्रेवल्स कर रहे हैं. उस rth लोकेशन में मतलब S3 के अंदर व्हाट यू हैव टू स्टोर, यू हैव टू स्टोर S ऑफ P एंड P इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय द फॉर लूप, बट R में भी तो मुझे आगे जाना है. सो आई विल से R प्लस प्लस. दिस इज माय फर्स्ट लूप. ठीक है. फॉर द सेकंड लूप व्हाट आई विल से, again the same thing. So I'll simply copy paste this and change things here and there. So if I copy paste this, अब यहाँ पे Q हो रहा है, instead of P we have Q. S की जगह S2 आ गया and this is again Q and Q plus plus. Here what is happening, S2 of Q ले रहे हैं हम और उसको S3 of R में प्रिंट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं. एंड फाइनली S3 of R जो फाइनल लोकेशन है उसके अंदर आप एक बैकस्लैश 0 ऐड कर दे रहे हो. इज एवरीवन ओके विद दिस? सभी को समझ में आया कैसे एक थर्ड वेरिएबल S3 में मैंने पहले S1 को कॉपी किया यूजिंग अ फॉर लूप, देन आई कॉपीड S2 यूजिंग अ फॉर लूप. ये चीज ठीक है. नाउ लेट अस रन दिस कोड. अच्छा, ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा क्योंकि मुझे कॉन्कैटिनेट करने के बाद प्रिंट भी करना है. तो ये देखो क्या हो रहा है, 16 प्रिंट हुआ बरोबर, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज आल्सो 16. 8.0 प्रिंट हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज आल्सो 8.0. बट मैंने जो कॉन्कैटिनेट किया है उसको प्रिंट भी तो करना है. सो आई विल से पुट S and now I have to just output S3. So now if I run this, hopefully the test cases will pass. Yes, sample test case 0 pass. Submit code करेंगे, test case 0 also pass, test case 1 also pass. ठीक है. तो यहां तक चीजें समझ में आई. Did everyone understand this? Answer in the chat. Yes. तो let us just have a recap. आज हमने क्या क्या देखा. We talked about डेटा टाइप्स फर्स्ट. ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी सी बात की. देन वी सॉ स्कैनएफ जो है वो एक बैकस्लैश n छोड़ देता है, जिसको अगर आपको लेना है बिफोर एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग यू वुड हैव टू राइट दैट. हाँ, आफ्ताब इज आस्किंग लास्ट में बैकस्लैश 0 क्यों ऐड किया. आफ्ताब, व्हाट वाज हैपनिंग इज दिस वाज माय S, दिस वाज माय S1, S1 हो गया, S हो गया, एंड दिस वाज माय S3. So what was happening, आपने पूरा S यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये हो गया पूरा कॉपी. आपने पूरा S1 यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये हो गया पूरा S1 कॉपी. तो फाइनली जो लास्ट पोजीशन R की है वहां पे आई एम सेइंग कि आई एम मैनुअली एंटरिंग द वैल्यू बैकस्लैश 0 बिकॉज द कंपाइलर फॉरगेट्स टू डू दैट. इसीलिए लास्ट में जो R की फाइनल वैल्यू थी आफ्टर बोथ द फॉर लूप्स which was one ahead of copying everything, उसमें मैंने बैकस्लैश 0 ऐड कर दिया ताकि कंपाइलर को जैसे बैकस्लैश 0 दिखे कंपाइलर विल एंड स्ट्रिंग. आर यू गेटिंग दिस आफ्ताब? ये चीज समझ में आया आपको? आफ्ताब, डिड यू गेट दिस नाउ? ओके. सो आज हमने क्या किया, डेटा टाइप्स वी कवर्ड स्कैनएफ के बैकस्लैश n को कैसे टैकल करते हैं. यू कैन सिंपली से, देख लो ध्यान से, स्कैनएफ एंड देन यू विल से यू स्कैन, बट आप उसको स्टोर मत करो. दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस स्कैनएफ को वो एक्सेप्ट कर लेगा. देन यू आर सेइंग परसेंटेज एंड दिस विल बी यूज्ड टू स्कैन योर स्ट्रिंग. ये सब हो गया. उसके बाद एक और चीज हमने देखा, परसेंटेज .1 LF. तो अगर आप परसेंटेज LF लिखोगे तो वो डबल को प्रिंट करेगा. कितने डेसिमल प्लेसेस? पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस. बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा था पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो इसीलिए आई रोट .1 LF. तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट आज पढ़ा. एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वी सॉ वाज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने के लिए देयर इज अ फंक्शन अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड एज strcat. ठीक है, बट strcat बहुत बारी एरर्स देता है एंड यू एक्चुअली आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल ओवर द एरे. तो इसीलिए हमने फॉर लूप यूज करके इसको किया ताकि वी कैन विजुअलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग.
Any doubt still here in this? Okay, so let me just stop recording now. Okay, so I'll upload this also on YouTube. I'll send a feedback form. I urge all of you to please fill that feedback form. But did you understand today's session? Were things clear? ठीक है? Yes, I hope you understood something new. ये सारी चीजें पहले भी अगर आपने पढ़ी हो सकती हैं, but it is always a good thing to keep learning and relearning so that you don't lose out on these crucial things. ठीक है? एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग के जो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसके एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करते जाए. ठीक है? देखो एक चीज और बता देता हूँ, जैसे जानवी वो सेइंग कि आप क्या कर सकते थे पता है, आप सीधा ये सब मत करो. ठीक है? ये सब मत लिखो, आप सीधा ये लिखो, यू राइट प्रिंटेड एंड यू राइट परसेंटेज एस देन परसेंटेज एस एंड पहले एस को प्रिंट करो फिर S1 को प्रिंट करो. तो अगर आप इसको रन करते हो तभी भी आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे. ओके, व्हाट इज हैपनिंग? S1 इज अनडिक्लेयर, ओ सॉरी S1 नहीं S2 आएगा यहाँ पे. तो इफ यू रन दिस तो भी आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, है ना? पास हो गया. अगर आप सबमिट करोगे तो भी सबमिट हो जाएगा. बट दिस इज व्हाट यू आर जस्ट प्रिंटिंग द टू स्ट्रिंग्स साइड बाय साइड. तो हैकर रैंक को लगा के आपने कॉन्काटिनेट कर दिया, बट आपने एक्चुअल में कॉन्काटिनेट नहीं किया है. ठीक है? आपने कॉन्काटिनेट नहीं किया है, यू हैड टू कॉन्काटिनेट. कॉन्काटिनेट मतलब अगर आप स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर रहे हो तो स्ट्रिंग 1 एक्चुअली पुराना स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स वो हो जाना चाहिए. तो अगर मैं कॉन्काटिनेट करने के बाद ओके मैंने रीसेट कर दिया कोड यार. लेट मी सी इफ आई एम एबल टू गेट, हाँ प्रीवियस कोड आया. अभी देखो अगर मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग 3 के जगह पे मान लो मैं स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, छोड़ो. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू हियर इज के जो अगर आप कॉन्काटिनेट करते हो S2 को S1 में तो S1 चेंज हो जाता है. पहले जितने S1 में चीजें थी उसके आगे S2 की चीजें कैरेक्टर्स ऐड हो जाती. वो आप सिर्फ प्रिंट करोगे अगर बगल बगल में तो टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट कॉन्काटिनेशन. दैट आई वांटेड टू टेल यू. ठीक है? इज दिस मच क्लियर? जावा में भी वी आर जस्ट प्रिंटिंग टू स्ट्रिंग्स यूजिंग प्लस. सो उसमें कैसे कॉन्काटिनेट हो रहा है? हाँ, तो उसमें भी कॉन्काटिनेट हो रहा है, बट फिर ठीक है. मतलब सी व्हाट इज हैपनिंग इज जावा हैज दिस फीचर जिसमें आप S1 प्लस S2 अगर आप लिखते हो तो उसका आउटपुट कॉन्काटिनेट हो जाता है. ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, S1 प्लस S2 करो, उसको S3 स्ट्रिंग में स्टोर कर दो, हो गया ना कॉन्काटिनेट. लेकिन सी की तरह आपको फॉर लूप नहीं लगाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है? है ना? ठीक है. So if you have any doubts you can just WhatsApp me and I'll send the link for day 2. Tomorrow is day 2. तो day 2 के क्वेश्चन सॉल्व करना and we'll discuss the underlying concepts of it at 4 o'clock. So take care. If you have no doubts तो ठीक है, अगर कुछ डाउट्स है तो WhatsApp कर देना. ठीक है? सेशन ठीक था? समझ में आया सब कुछ? ओके, चलो देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय.